There are some important facts in electrostats. Most of the facts are related to your Coulomb's law. Electrostatic force is conservative in nature. Always remember, Coulomb's law obeys Newton's third law. Newton's third law, every action has equal and opposite reaction. Same way here, force exerted by two charges on each other are equal and opposite. If two charges are in any place, then there will be forces will be equal and opposite in nature. Coulomb's law is not valid for distance less than 10 to the power minus 15 meter. 10 to the power minus 15 meter से कम distance है तो Coulomb's law is not applicable. Coulomb's law is valid only for point charges if the size of object is very point charges. And what is point charge? If the size of object is very small as compared to the separation, then they are considered as point charges. For example, if your two charges are like this, if your distance is here this r और इसका जो डायमीटर या इसका रेडियस है वो r1 ले लेते हैं और दिस r1 is your very less with respect to r, then this is called point charge. The force between point charge is independent of the presence or absence of any other charges, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके थे कि इसको मतलब नहीं है कि दूसरा चार्ज काम कर रहा है या नहीं, दूसरा चार्ज है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है. दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स काम करेगा वो उतना ही होगा. Here epsilon by epsilon naught is k and this k is equal to epsilon r, where epsilon is the permittivity of vacuum and epsilon r is the relative permittivity and epsilon naught is the permittivity of vacuum. Epsilon naught जो होता है permittivity of vacuum है. Epsilon naught is permittivity of vacuum. इसको हम वैक्यूम के लिए लिखते हैं. And this is the ratio K. Here two small charge. What is the force between two small charge? One charge Q1 is let your 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and other charge Q2 is here 3 into 10 to the power minus 7 coulomb are placed at a distance of your distance r is your 30 centimeter. What will be the force between them? इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा? मीडियम इज योर एयर, ये एयर दिया हुआ है, एयर इज योर मीडियम. मान लिया ऐसा कोई न्यूमेरिकल है, उस पे फोर्स आपको निकालना है. कैसे निकालेंगे? यू विल. इफ योर क्वेश्चन इज Q1 is given 2 into 10 to the power minus 7, Q2 is 3 into 10 to the power minus 7 and distance between the charge is 30 centimeter. मीडियम इज एयर. व्हाट विल बी द फोर्स? तो आपके पास फोर्स निकाल सकते हैं इससे. इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? फोर्स के लिए जो आपका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by r स्क्वायर. तो हम यहाँ Q1 Q2 r स्क्वायर को पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 to the power 9. ये वैल्यू आ गया. And Q1 is given here 2 into 10 to the power minus 7 and here this is 3 into 10 to the power minus 7 given and R is your 30 centimeter. तो 30 centimeter को हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं. This is 10 to the power minus 2. हम लोग इसको लिख दिए ये by 2 करने के बाद और ये आ गया होल स्क्वायर. तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, you will get the result. एंड इस यूनिट आपको लिखना होगा कूलम्ब. एंड दिस फोर्स इज योर, इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन. इतना न्यूटन फोर्स आपका काम करेगा. एंड नेचर ऑफ दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव. ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा बिकॉज हियर दिस चार्ज इज सेम नेचर. सेम नेचर के चार्ज है इसीलिए रिपल्सिव होगा. सेम नेचर इसीलिए जो होगा आपका रिपल्सिव होगा. एंड इसको सॉल्व कीजिए. दिस न्यूटन इज योर आंसर. एंड रिपल्सिव नेचर जो होगा इस फोर्स का वो रिपल्सिव होगा बिकॉज चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फाइंड द वर्क डन. फाइंड द वर्क डन by some external force by
some external force in moving a charge 2 microcoulomb from infinity to a point where electric potential is 10 to the power minus 4 volt. Question: find the work done by some external force in moving a charge 2 microcoulomb from infinity to a point where electric potential is 10 to the power 4 volt. Using the relation you know here, W infinity to A, infinity से हमको A तक पहुंचना है, तो वर्क डन कितना होगा? तो W इज सिंबल फॉर वर्क डन, और इन्फिनिटी से पोजीशन A तक के लिए हम लोग निकाल रहे हैं. एंड दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल force. This is equals to your Q into VA. Q, this is the value of charge and VA is the potential at A. A जो पोजीशन है, उस पोजीशन पर आपका पोटेंशियल जो है उसको हम लिखेंगे. तो here Q is equals to 2 microcoulomb. That means you can write 2 into 10 to the power minus 6. This is the value of your charge, and your potential, electric potential is given here 10 to the power 4. That means this is 10 to the power 4 volt. That means multiply this, you will get, this is your work done infinity to A. Infinity से A तक आने में जितना work done होगा by external force is your 2 into 10 to the power minus 2, and this is your joule. This is the answer. Now this numerical is based on electric field. Your question is, a charge 1 microcoulomb is placed at a point, whose coordinate is 1, 2m and 4m. This is the coordinate of a charge which is placed at point A. Find the electric field. Find the electric field at a point P having coordinate 0, minus 4m, 3m. तो आपको बताना है कि P पर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे. तो आपके पास ये बेसिक आइडिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू, हम लोग को पता है, दिस इज F बाई Q. फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर के ही टर्म्स में हम लोग निकालेंगे. एंड हियर चार्ज इज गिवन 1, चार्ज जिसके कारण निकालना है वो है 1 माइक्रोकूलम, एंड दिस इज योर टेस्ट चार्ज. तो ये हमारा पास जो होता है Q नॉट होता है टेस्ट चार्ज. इसी को हम लिमिट के टर्म्स में लिख सकते हैं, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 एंड दिस इज F बाई दिस इज Q नॉट. तो Q is tending to 0. Now here पोजीशन ऑफ Q, पोजीशन पहले ले लेते हैं. इस पोजीशन को हम Q ले लेते हैं, इस पोजीशन को हम P ले लेते हैं. तो इसको हम लिखेंगे हियर RQ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. तो वेक्टर के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे दिस इज I प्लस 2j प्लस 4k. दिस इज द पोजीशन ऑफ RQ. एंड RP वेक्टर दे देते हैं हम. तो RP हमारा जो वेक्टर होगा ये होगा आपके पास 0i, दिस इज 0i माइनस 4j, दिस इज माइनस 4j प्लस 3k. ये आपके पास वेक्टर हो गया. नाउ यू कैन राइट RP minus RQ in terms of vector. तो you have to subtract this like vector. तो RP minus RQ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास this minus this, that means minus I minus 4j, this is minus 6j and this is 3k, तो minus ये k हो गया आपके पास.
तो दिस इज द वेक्टर rp माइनस rq। अब आपके पास ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। E इज इक्वल्स टू हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस इज Q, एंड आपके पास जो डिवाइड करेंगे तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स के बाद भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर Q के बाद लिखने के बाद कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया r³ एंड दिस इज वेक्टर r। याद रखेंगे यहाँ r स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ यूनिट वेक्टर देना होगा। इफ हियर r³ देन यू हैव टू राइट वेक्टर r, और इसी वेक्टर r को हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q बाई दिस इज योर rp माइनस rq, एंड दिस वेक्टर, इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हम क्या करेंगे क्यूब, दिस इज क्यूब एंड दिस इज योर rp माइनस rq वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर। वेक्टर को हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे। नाउ योर रिजल्ट विल बी E इक्वल्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम पुट करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू दिस इज 1 माइक्रोकूलम, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दिस इज फॉर चार्ज। और ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड पहले लिखेंगे और इस वेक्टर को पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज माइनस I माइनस 6j माइनस k, दिस इज द वेक्टर। एंड नाउ अब इसके मैग्नीट्यूड को लिख लेते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लिखने के लिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड दिस इज इनटू दिस इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड दिस इज I माइनस 6j माइनस k डिवाइडेड बाई, यू हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ rp माइनस rq। तो rp माइनस rq का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये आएगा आपके पास rp माइनस rq जो हमारे पास फैक्टर था, दिस इज -1 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर रूट अंडर एंड दिस इज होल क्यूब, दैट मीन्स यू कैन राइट दिस इज योर E equals, this will be 36 and this is 38, that means this is 38 power here 3/2, 38 to the power 3/2 and this is 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 6 and this is your vector minus I minus 6j minus k. This is your electric field at point 0, -4 and 3 and this is your unit, right? Newton per coulomb is your value. Electric field line is an imaginary line or curved line drawn through a region of space so that its tangent at any point is in the direction of electric field vector, and tangent gives the direction of electric field vector, tangent on this gives the direction of electric field vector. Electric field line always originates from positive charge. Let Q is positive here, positive charge, then electric field lines, which is imaginary hypothetical concept, originates from positive charge and it terminates at negative charge. For example, it is negative, then it terminates at negative charge. Then your for negative charge electric field line will be like this. कुछ इस तरह से आपका electric field line होगा for negative charge, and for positive charge electric field line is originating and it will move outward and it is inward. For two pair of your charge, if it is positive charge and it is negative charge, it is called dipole. तो dipole के लिए क्या होगा, पॉजिटिव से ये ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव की ओर जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव की ओर गया, पॉजिटिव से ओरिजिनेट नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से ओरिजिनेट नेगेटिव की ओर, टर्मिनेट लाइक दिस वन। ये कुछ इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करेगा ऐसे। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसलिए इसमें कोई ये नहीं है कि ये आपको दिखेगा, विजुअलाइज होगा, ये केवल इमेजिन करना है आपको। दिस इज इमेजिनरी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्लोज है, P पॉइंट पर ज्यादा क्लोज है विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो जहां जितना क्लोज होगा उस वहां पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया
is directly proportional to your this one electric field. That means electric field line can never form closed loop. ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा, ऐसे जाएगा और रिटर्न बैक नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा ऐसा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स एज लाइन कैन नेवर start and end on the same charge. Electric field lines also gives an indication of equipotential surface. Surface which has the same potential is called equipotential surface. Electric field lines always flow from higher potential to lower potential. This is the electric field line due to pair of two positive charges and pair of two negative charges. Electric field line originates from positive charge, और ये देखिए यहाँ पर रिपल्सन होगा, यहाँ पर आपको रिपल्सन के कारण यहाँ पर फील्ड लाइंस नहीं दिख रहा है यहाँ पर. एंड हियर टू नेगेटिव चार्जेस, हियर ऑल्सो रिपल्सन. तो ये आपको इस तरह से ये ब्लैंक्स रीजन दिख रहा है. दैट मीन्स योर फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग फ्रॉम दैट एरिया. Electric field lines ends and starts normally from the surface of conductor. Electric lines of force starts or ends normally from the surface of conductor. Now see here, what is uniform and what is non-uniform field lines. Uniform field lines will be like this. All lines should be parallel in same direction and having equal length, same length, equal distance gap, and direction should be same. And here this is your non-uniform. Non-uniform means this is देखिए इन दोनों लाइन के बीच में गैप बहुत कम है और ये देखिए अचानक गैप बढ़ जाए तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. ये भी नॉन यूनिफॉर्म है. पॉइंट चार्ज के कारण हम दे रहे हैं तो ये देखिए दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. यहाँ देखिए नॉन यूनिफॉर्म. जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रहे हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा. यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मोर विथ रिस्पेक्ट टू हियर क्यू. इस क्यू के रिस्पेक्ट में पी पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. और यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म है. यहाँ पर पी पे भी देखेंगे उतना ही होगा, एट क्यू उतना ही होगा, आर देखेंगे उतना ही होगा. एंड दिस इज हियर जितना क्यू के करीब जाएंगे दिस इज एट ए, योर फील्ड लाइन इज मोर पासिंग थ्रू ए एंड बी पे कम पास कर रहा है बी के थ्रू. तो यहाँ पे देखिए फील्ड लाइन इज योर लेस स्ट्रॉन्गर देन ए. तो ये हो गया दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. कुछ फील्ड लाइंस मान लिया इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में है रैंडमली. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस. दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म. लेंथ अनइक्वल है. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. तो यहाँ देखिए डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण हो गया नॉन यूनिफॉर्म. लेंथ डिफरेंट होने के कारण दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. देखिए यहाँ पर डायरेक्शन अलग अलग है सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म. यहाँ मोर कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पे देखिए आपका ये डिस्टेंस गैप जो है काफी ज्यादा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म. And this is your uniform field lines. Uniform field lines means direction should be same, gap between line is same, and your length of the line is same. This is uniform field line, uniform electric field line. Now electric field due to isolated point charge. Isolated point charge. First draw the figure. Let this is your y-axis and this is x-axis and this is origin here. Let a charge of q, value q is placed at origin. This is your origin and q amount of charge is placed at origin and q naught is any test charge. q naught मान लिया कोई टेस्ट चार्ज है और इसके फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमने q naught यहाँ पर रखा है. तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. इस डायरेक्शन में आपको रिपेल किया एंड फ्रॉम q टू q naught डिस्टेंस इज लेट r. मान लिया ये डिस्टेंस है r. तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि कंसीडर अ चार्ज q प्लेस्ड एट ओरिजिन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट p. हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी p पर फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p हियर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से लेकर हमने जो डिस्टेंस लिया है लेट दिस डिस्टेंस इज r. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यहाँ से यहाँ तक ये तो रिपल्सन इसलिए होगा कि बिकॉज दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन हो गया. तो हम लोग एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन फोर्स के ही डायरेक्शन में होता है. तो हम लोग सबसे पहले कूलम्स लॉ से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा. तो फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू नॉट
divided by r square and r is unit vector in this direction. मान लिया एक यूनिट वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में ले लिया तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. एंड यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लिमिट हियर q टेंड्स टू 0 एंड दिस इज f बाई q नॉट. हम लोग या फिर q नॉट लिख सकते हैं यहाँ पर q नॉट. तो हमारे पास क्या है, f का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है. दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q and q naught by r square. This is unit vector divided by this is q naught. Q naught cancel. That means here electric field is equals to here this is 1/4 pi epsilon naught and this is q by r square and this is your unit vector. And q is the charge जो कि हमने प्लेस किया था कहाँ पर, ओरिजिन पे. दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपल्सन हो गया. तो E is radially directed radially outward from it. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होगा इससे बाहर की ओर होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं. एंड Q is if Q is negative, अगर Q नेगेटिव होगा, अभी यहाँ है नहीं, if Q is negative then electric field will be your directed inward. तो उस समय भी मैग्नीट्यूड हम उतना ही लिखेंगे. तो कई जगह डायरेक्ट आप KE भी इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज KE एंड KE इसके वैल्यू को हमने लिखा है दिस इज Q बाई r square and this r is unit vector. This is the electric field due to isolated point charge placed at origin.